send the screenshots if the forms are different. So let's make some sentences with let me ask KK first. KK, have you reaped the wheat from the field? Yes, sir. Yes, sir. I have reaped the wheat from the field. केके क्या आपने खेत से गेहूं काट लिया है? हाँ सर, मैंने खेत से गेहूं काट लिया है. You With can whom ask should I? anyone, whoever is on the screen. Okay, Juhi ma'am, have you reaped the crop from the field? Yes, I have reaped the crop from the field. Sorry. Yes, I have reaped the Okay. crop from the field. मैम, क्या आपने जमीन से फसल काट ली है? हाँ, मैंने जमीन से फसल काट ली है. सौम्या, have you have you reaped the have you reaped the crop of crop of soya bean from the field? Yes, I have reaped the crop of soybean from the field. क्या आपने सोयाबीन की फसल काट ली है? हाँ, मैंने सोयाबीन की फसल जमीन से काट ली है. जमीन से काट ली. Sir, have you reaped the wheat from the field? Soumya, I think Sakshi joined, but she. She's left, sir, immediately. Okay. Okay, now I'm answering. No, Soumya, I have not reaped the crop. I have to reap. I will Sir, start reaping from Monday. सर क्या आपने जमीन से फसल काट ली है? नहीं, मैंने अभी तक काटी नहीं है, लेकिन मुझे काटना है और मैं मंडे से शुरू करूंगा. तो दोस्तों, हमने आपको फील्ड वर्क दिया था, जूही जी ने पूरा कर लिया तो मैंने लिखवा दिया. अब जब सौम्या पूरा करेगी तो दूसरा भी लिखवा देगी. सर सौम्य कर दिया है सर, मैंने भी सेंड. अच्छा, कल कर दिया था? यस सर, कल ही कर दिया था. तो चलो बताओ, हम लिखते जाते हैं. बोना. The verb for bona. हाँ, Yeah, the verb for bona should be sow. The second form of sir, हाँ. Joy Didi, what should be the second form of sow? the second form of sow should be sowed. Krishna, what should be the third form of sow? I think Sue is the third form of so. I'm not sure. Uh, Soumya, have you got double third form and double second form in the Sir, dictionary? I have got single second form and third form. Sowed and the third form is sown. SOWN. Yes. I wanted to confirm. Is my spelling correct? Yes, sir, it is correct. Uh, KK, have you sown dalhan? Yes, sir. Uh, I have sown the dalhan क्या आपने because दलहन this की is. बुआई कर दी है? हाँ सर, मैंने दलहन की बुवाई कर दिया. ये शब्द मैंने टीवी में सुना जब कृषि दर्शन आता था.
तो दाल से संबंधित जितनी फसल है उनको दलहन कहते हैं, राइट के? यस सर, दलहन. Juhi ma'am, have you sown the wheat? Yes, I have sown the wheat. मैम क्या आपने गेहूं बो दिया है? हाँ, मैंने गेहूं बो दिया है. Soumya, have you sown the crop of corn? Yes, I have sown the crop of corn. क्या आपने कॉर्न की फसल बो दी है? हाँ, मैंने मक्के की फसल बो दी है. मक्का के. के भैया, have you sown the Because I started. sir, have you sown the crop of gram? No, I have not sown the crop of grams because my tractor was not working. सर, क्या आपने चने की फसल बो दी है? नहीं, मैंने चने की फसल नहीं बोई है क्योंकि ट्रैक्टर चल नहीं रहा था. सौम्या, has Krishna delivered his speech in your batch? Yes, sir. He delivered the speech in our batch. Do you know he is your neighbor? Yes, sir. He is from Gardarwara. He is from Gadarwara and you are from Kareem. Yes, sir. I know that. Okay, my next question, listen carefully. I'm starting with you. You can ask KK. KK will ask Juhi. Soumya, are you sowing anything else in this season? No, sir. I am not. Sir, should I answer in negative or affirmative? Anything. No, sir. I am not sowing anything in my field. Come again, sir. Are you sowing anything else in this season? No, sir. I am not sowing anything else in this season. क्या आप इस सीजन में कुछ और भी बो रही हैं? नहीं सर, मैं इस सीजन में कुछ और नहीं बो रही हूँ. के भैया, have you sowing anything else in this season? Are you Yes, sowing? Sorry, Soumya. sorry. Yeah. Are you sowing anything else in this season? Yes, I'm sowing so many things in this season, like sorry, oil seeds and sugar cane. क्या आप इस सीजन में कुछ और भी बो रहे हैं? हाँ, मैं इस सीजन में कुछ और भी बो रहा हूँ, सरसों और गन्ना. Ma'am, are you sowing anything else in this season? Yes, I am sowing different kinds of vegetable in my place. Okay. मैम, आप इस सीजन में कुछ और भी बुवाई कर रही हैं? हाँ, मैं इस सीजन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा रही हूँ, बो रही हूँ. Okay. Sir, are you sowing anything else in this season? No, I'm not. No, I'm sowing nothing else in this season. क्या आप इस सीजन में कुछ बो रहे हैं सर? कुछ और बो रहे हैं? नहीं, मैं इस सीजन में कुछ और नहीं बोल रहा हूँ. आई एम सोइंग नथिंग एल्स इन दिस सीजन.
केके, डिड यू अफर्मेटिव आंसर देना। डिड यू सो धान? You are mute. Yes, sir. I showed Dhan in the last season. सेकेंड फॉर्म का भी थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए दिस क्वेश्चन, क्या तुमने धान बो दी? हाँ सर, मैंने धान बोई थी लास्ट सीजन में। मैम, हैव यू नहीं, प्रेजेंट sorry. परफेक्ट नहीं। Okay. Ma'am, did you sow some grains in the last season? Answer, then ask the same question to next candidate. Okay, sir. KK, have you written the first one? Yes, sir. I have written the first one. Should I erase? Yes, sir. You should erase. क्या आपने पहली वाली लिख ली है? हाँ सर, मैंने पहली वाली लिख ली है। क्या मैं मिटा दूं? हाँ सर, आप मिटा दीजिए। अब इसका पूछ लो। मैम, हैव यू रिटन द फर्स्ट वन? नहीं, सेकंड। Sorry. Okay. Ma'am, have you written the second one? Yes, I have written the second one. Can I erase it? Yes, you can erase it. Okay. क्या मैम आपने दूसरी वाली लिख ली है? हाँ, मैंने दूसरा वाला लिख लिया है। क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ, या आप क्या इसे मैं मिटा सकते हो। Okay. सौम्या, सौम्या, have you erased third one? Sorry. Sorry. Can you write third one? Sorry, Didi. Have you write third one? Sorry. हम इसको ऐसा कर लेते हैं, आप चाहें तो रफ पेज पे लिखें या रियल रजिस्टर जिसमें Juhi ji, is it my hand is visible to you? No. Here? Yes, sir. Yeah. Now it is.
Soumya, what should be the first point? So the first point should be identification. Thank you. जूही जी यहाँ तक दिख रहा है? Is it visible here? By नो सर, यहाँ? हाँ बस यहाँ दिख रहा है, नॉट यस। सौम्य, पहला बिंदु कौन सा होना चाहिए? पहला बिंदु आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगला सवाल तुम के से पूछो। सेकंड। के भैया, व्हाट शुड बी द सेकंड पॉइंट? नहीं, what should be the identification? ओके, सॉरी सर। भैया, व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन? द आइडेंटिफिकेशन शुड बी खा लिया है, पी ली है, Soumya, what should be the formula of present perfect tense? The formula should be subject plus has, have plus third form of verb plus object plus extension. Let's start first round. And guys, do you remember? हम पहला राउंड हमेशा किससे शुरू करते हैं? I सर विथ आई। यस। तो जो भी लास्ट कैंडिडेट था उसके बाद वाला कैंडिडेट पहला सेंटेंस बना दे। सर आई हैव डन इट, मैंने ये कर लिया है। देखिए जूही जी, यहाँ पे आई का हिंदी अर्थ बदल के मैंने हो रहा है। ये हमारी हिंदी की समस्या है। आई अभी भी आई है, लेकिन हमारा हिंदी बदल के मैंने हो गया। आई है डन। क्रिया का तीसरा रूप आता है इसमें, डू, डिड, डन। आई हैव डन इट, मैंने ये कर लिया है। सोम्या। Sir, I have written the identification and formula of present perfect tense. मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मूला लिख लिया है। जी दीदी। I have read that book. मैंने वह बुक पढ़ ली है। Now it is my go. I am also taking part in sentence making. Now I have given you present perfect tense. अब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे दिया है। थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। जूही जी, प्रेजेंट और परफेक्ट यानी प्रेजेंट में वर्तमान में किसी कार्य के पूर्ण होने की जो जानकारी दे, प्रेजेंट परफेक्ट।
इसका हम खूब प्रयोग करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में इसका खूब ज़्यादा प्रयोग होता है और इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो यहाँ से हम पहली बार थर्ड फॉर्म प्रयोग करना शुरू करते हैं और लिखवाया तो आज है मैंने, लेकिन इसका प्रयोग मैं पहले दिन से कर रहा हूं आपसे। चलिए अब हम दूसरा राउंड खेलते हैं जिसमें हैज लगेगा। आज हालांकि मुझे याद है कि मुझे आपको कुछ और देना था, लेकिन मान्या इज एब्सेंट, तो और इसकी जरूरत आन पड़ी थी, इसलिए आज ये दे दिया। पिछली बार भी मैंने ये दिया है समय, डू यू रिमेम्बर? हाँ, Yes, maybe sir, and I have written 7 sentences in present perfect tense. तो क्यों ना उन्हीं सेंटेंसेस पे चर्चा कर लेते हैं सौम्य, है ना? टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? So the first sentence is they have come. वे आ गए हैं. ओके सौम्या, who have come? Sir, they have come. कौन लोग आ गए हैं? वे लोग आ गए हैं. Ask the same question to KK. के भैया who have come? I think student have come. कौन आ गए हैं? विद्यार्थी आ गए हैं. I have a doubt here. Google also did not take one small thing. Sir, students have come. कौन आ गए हैं? विद्यार्थी आ गए हैं. मैम, who have come? My friends have come. मैम, कौन आ गया है? सॉरी, कौन आ गए हैं? मेरे दोस्त आ गए हैं. सौम्या, who have to come? Sorry, sir. Who have to come? Sorry. Who have? Who have? Who have come? Munnu, Pappu and Guddu have come. कौन आ गए हैं? मुन्नू, पप्पू, गुड्डू आ गए हैं. सौम्या, listen carefully and watch your say. Who has come? Sir, only Pappu has come. कौन आ गए है? सर सर पप्पू आ गया है. के भैया who has come? My brother has come. कौन आ गया है? मेरा भाई आ गया है. मैम, who has come? My neighbor has come. मैम, कौन आ गया है? मेरा पड़ोसी आ गया है. Sir, who has come? The maid has come. Wow, Google has taken correct spelling. कौन आ गया है? बाई आ गई है. Somewhere tell me the second sentence. Sir, the second sentence is has she gone? क्या वह चली गई है? Okay. Somewhere, where has she gone? Sir, she has gone to her college. Very nice. Somewhere वो कहाँ गई है? सर वो अपने कॉलेज गई है. आखिरी में है लगना जरूरी है क्योंकि ये प्रेजेंट है.
इसके पहले हमने जो प्रेजेंट देखा था जी, उसमें प्रेजेंट सिंपल में ता है ती है आता है, इसमें ता है नहीं आता है, लेकिन कार्य के पूर्ण होने का आभास होता है। वो कहाँ गई है? अगर हम इसको ऐसे बोलते सोच के देखें दोस्तों, वह कहाँ जा चुकी है, तो कितना खराब लगता। That's why I have given this identification on the priority basis and this identification on the secondary basis. तो भैया वेयर हैज शी गॉन? एक सेकेंड जूही जी, आप पूरे सेंटेंसेस को ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाली आइडेंटिफिकेशन जो पहले नंबर पे लिखवाई है वही सबसे ज्यादा प्रयोग होती है और हम रोज की जिंदगी में उसी का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा प्लीज। भैया वेयर हैज शी गॉन? She has gone to the party. वह कहाँ चली गई है? वह पार्टी में गई है। मैम, where has she gone? She has gone to garden. मैम, वो कहाँ गई है? वो गार्डन गई है। सौम्या, वेयर हैज शी गॉन? शी हैज गॉन Actually, you should ask me. Okay, sir, where has she gone? She has gone to मायके। कि वह कहाँ गई है? वो मायके गई है। So, ma'am, what is the third sentence? So the third sentence is Karan has achieved his aim himself. करण ने अपना लक्ष्य स्वयं हासिल किया है। ओके, चलिए इसमें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बदलना सीखते हैं। जी जी, आपको ये वाक्य याद है? पिछली बार दिया है? नहीं, कोई बात नहीं। इसमें दो नई चीजें हमने सिखाई हैं, वो वीडियो सुनना, सुनाई दिया नहीं? ओके। पॉजेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है यूट्यूब? आपसे ढूंढते बन जाए। समय तुमने डेट नोट की है क्या कि जिस दिन हमने ये शुरू किया? नहीं। सर तो कैसे मिलेगा वो उस दिन का वीडियो? कोई सजेस्ट करेगा तुम्हारे बैच का? सर वो तो ढूंढना ही पड़ेगा सर, वीडियोस में जाके, चैनल पे जाके। तो क्या ये बहुत दिक्कत वाला होता है कि तुम कर सकती हो? नहीं। सर देख लेंगे। हाँ, वो एक एक करके पूरे देखना पड़ता है और हमें खुद भी याद नहीं है कि हमारी एक स्टूडेंट थी, वो हर चैप्टर और वर्क के साइड में डेट लिखती थी, तो वो अच्छा तरीका है। आज से तुम सभी लोग लिखना शुरू कर दें तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। मान्या हैज कम। सौम्या, हु हैज कम? मान्या दीदी हैज कम। कौन आ गया है? मान्या दीदी आ गई हैं। गुड इवनिंग सर।
Sir, I'm सौम्या so जी, sorry I'm late because some guest has come suddenly, so I could not join on time. wow, you are speaking English. सौम्या, ask जूही जी. Juhi Didi, who has come? मान्या has come. सौम्या, कौन आ गया है? मान्या आ गई है. कृष्णा सर, who has come? I think नहीं, I'm sure Manya madam has come. कौन आ गया है? मान्या मैडम आ गई हैं. नहीं, your answer is correct, KK, because she is not visible. So in that case, you can say maybe Manya madam has come. Yes sir. Okay. Sir, who has come? I am sure Manya has come. Okay sir. कौन आ गया है? मुझे पक्का है मान्या आ गई. Okay. हम possessive adjective पर बात कर रहे थे. सौम्या, please repeat the sentence. The sentence is Karan has achieved his aim himself. अचानक चेंज करें क्या? जो अपने को पहले करना था अभी दे दें. ठीक है. चलो एक बार फिर से so let's focus what exactly person is. Sumya, can you tell me how many persons are there in English grammar? So there are 3 persons. सौम्या, क्या आप बता सकती हैं अंग्रेजी व्याकरण में कितने पर्सन होते हैं? सर, अंग्रेजी व्याकरण में 3 पर्सन होते हैं. Which are they? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड And पर्सन. yes, ask 2 questions to Manya or KK. Anybody. Okay. Manya Didi, can you tell me how many persons are there in English grammar? There are 3 persons in English grammar. Can you tell me the name? The name of persons of English grammar is first person, second person, and third person. Joyidi, can you tell me how many persons are in English grammar?
There are three persons in English grammar. Can you tell me the name of persons? The name of persons is first person, second person, and third person. KK sir, can you tell me how many persons in English grammar? Yes, ma'am. I can tell you how many persons are there in English grammar. First person, second person, and third person. मान्या, कैन यू टेल मी फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? No, sir, I can tell जूही you, जी, but I don't know. Yes, जूही sir. जी, I and we, I think so. First person. सौम्या, Yes, sir. I and B. केके, Yes, sir. I and we comes in the first person. मान्या बताओ सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? कैन यू टेल मी? So you and they are in second person. वेरी गुड। अब जूही जी से पूछो। Juidi, can you tell me the second person? Who are second person? You and I think so only you. Soumya, can you tell? Okay, sorry, Soumya is also remaining. Soumya, can you tell me who's come in second person? Only you comes in second person. KK Bhaiya, can you tell me who comes in the second person? Bhaiya, you are mute. Only you can come under the second person. Ma'am, okay. Ma'am, who come under the second person? Okay. Who come under the third person? Juhi ma'am, I'm asking to you. I think so. They and them comes in third person. Okay, Soumya, who comes in third person? Okay. He, she, it, and they comes in the third person. Mane Didi, who comes in third person? He, she, it, they, and so on comes in third person. स्टॉप। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हैव यू टेकन ए स्क्रीनशॉट? ओके, अभी थोड़ा और इसमें हम लिखवाएंगे। फर्स्ट पर्सन में आई और वी ये आते हैं। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, किसी का भी नाम, सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। अब चर्चा करते हैं फर्स्ट पर्सन कौन होता है। Your younger son was waving the hand. मान्य यंगर ना? No, sir, he is elder one. ओके, एल्डर वन। कुछ बोल रहा था? No, sir, actually, just he came from the his tuition, so just
ओके, फर्स्ट पर्सन दोस्तों वो होता है जो बात कर रहा हो, फर्स्ट पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा हो। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी बात की जा रही है। तो बताइए, राइट नाउ हु इज फर्स्ट पर्सन? Sir, you are the first person. नो, यू आर द सेकंड पर्सन। सौम्य पट से समझ गई। माने you are absolutely right. I am the first person. And who is the second person right We now? are the second person. Right, we are the first person. Sir, this is cheating. Yes, this is cheating. I accept it. This is cheating. Sometimes cheating makes us laugh and it increases the blood, especially hemoglobin. तो इस समय फर्स्ट पर्सन मैं हूं, आप सब सेकंड पर्सन है। नाउ टेल मी द सीरियस क्वेश्चन, हु इज द थर्ड पर्सन बिटवीन अस? Sir, types of person are the third person between us. बिल्कुल सही। एक थर्ड पर्सन ये भी है, ये भी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और एक जवाब ये भी हो सकता है कि हम और आपके बीच में अभी थर्ड पर्सन इंग्लिश है, क्योंकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। या एक जवाब ये भी हो सकता है कि अभी हम लोगों के बीच में ग्रामर थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम ग्रामर की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यू आर अनम्यूट, यू शुड म्यूट। हाँ, थैंक यू। दोस्तों, जब दो लोग बातें कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन हो ही, लेकिन जब दो महिलाएं बात करती हैं तो थर्ड पर्सन का होना जरूरी है। सो मैं बुरा तो नहीं लगा ना? सर बहुत बुरा लग गया। तुम अभी महिला की श्रेणी में हो कहाँ? तुम तो अभी गर्ल्स की श्रेणी में हो। सर दो दो दीदियां हैं ना सर, उनके लिए बुरा लग गया। अच्छा किया तुमने ये आंसर दिया। अगर तुम बोलती ना कि नहीं सर बुरा नहीं लगा, तो हम मालूम क्या बोलते, बहुत बेशरम हो। फिर तुम बोलती दिस इज चीटिंग, तो हम बोलते यस दिस इज चीटिंग। इसलिए हमने दोनों दीदियों से नहीं पूछा। ओके, एक्चुअली दोस्तों ये चैप्टर बहुत बोरिंग चैप्टर है और हमें आपके दिमाग में इसको अच्छे से रखवाना है। तो हमें ऐसे कुछ मजाकिया किस्सों का सहारा लेना पड़ता है, तो इस बहाने आपको ये याद रहेगा। तो आगे भी अभी हमें जो कुछ भी बताऊंगा बोलूंगा उसको व्यक्तिगत रूप से ना लें। इंटरेस्ट, कोई चीज में इंटरेस्ट आता है तो कहानी हमेशा दिमाग में रहती है, उससे हम चीज को याद कर लेते हैं। बोरिंग है लेकिन जरूरी भी बहुत है, इसलिए। और ऐसा नहीं कि हमने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में इसको नहीं सीखा है, सीखा है। लेकिन अब आप जिस रूप में इसको देखने जा रहे हैं और कुछ और नई चीजें इसमें देखेंगे, वो अगर आपके जहन में रहेंगी, बैठेगी अच्छे से, तो आपको आगे कई बार इनकी जरूरत पड़ेगी और वो आपको मदद करेंगे। दे विल हेल्प यू। हमने जो उदाहरण दे रहे थे अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि दो लोगों के बीच में
कोई तीसरा व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मिस्टर शर्मा और मिस्टर गुप्ता आपस में बात कर रहे हैं, तो गुप्ता जी ने पूछा, और शर्मा जी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने दवाई जारी रखने को बोला है कि बंद कर दी है, आराम कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो गुप्ता जी और शर्मा जी के बीच में इस समय कोई थर्ड पर्सन नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि शर्मा जी की तबीयत थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन कोई नहीं है। तो जरूरी नहीं कि दो लोग बात करें तो थर्ड पर्सन हो, लेकिन आमतौर पे जब हम बात करते हैं तो थर्ड पर्सन कोई ना कोई होता है। अब यहाँ छोटी सी और चीज, जूही जी, इज इट विजिबल टू यू ऑल नो सर, नाउ? नो सर, यहाँ से यहाँ तक? नो सर। अरे अभी Yes, sir. ओके, Now it is. एम आई क्लियरली ऑडिबल? Yes, sir, you are clearly audible. शुड आई स्पीक अप और आई एम ओके? You are okay, sir. Now I'm asking to Manya. Manya, can you tell me, he is singular number or plural number? Sir, he is singular number. Correct. मान्या, ही एक वचन है कि बहुवचन है? सर ही एक वचन है। अब अगला सवाल मान्या सौम्या से करो, इसको ले सेम। सौम्या, शी इज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर? दीदी शी इज सिंगुलर नंबर। शी एक वचन है या बहुवचन है? शी एक वचन है। जो दीदी, इट इज अ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर? It is a plural number. No, it. Sorry. I don't know. के से पूछ, आस्क के जूही जी। KK sir, it is singular or plural? Singular number or plural number? It is a singular number subject. Okay. It singular एक वचन है या बहुवचन? It singular sorry, it is एक वचन subject है। जूही मैम। माल्या जी। Okay, मान्या मैम, they is a singular subject or plural subject? दे इज प्लूरल सब्जेक्ट। Okay. दोस्तों, हम ही का प्रयोग हमेशा किसके लिए करते हैं? एक वचन के लिए। आप एक स्क्रीनशॉट बाद में और ले लेना। शी का प्रयोग हम हमेशा किसके लिए करते हैं सोम्या? सर एक वचन। के? Yes, sir. मान्या? सर वुमन और गर्ल, फॉर फीमेल। आपको मालूम है, आप अपनी स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं जब भी चाहें। ही का प्रयोग हम एक पुरुष के लिए करते हैं, शी का प्रयोग हम एक स्त्री के लिए करते हैं। के को छोड़ के बाकी कोई बता सकता है कि इट का प्रयोग हम किस किस के लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग सर, निर्जीव करता है जो रहता है उसके लिए। सर फॉर एनी एनिमल और एनीथिंग। हाँ, सोम्या? यस सर, फॉर एनी एनिमल और
anything? हम 5 चीजों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कोई एक वस्तु होना चाहिए, उसमें इट लगाते हैं, इट इज अ पेन। कोई एक जानवर हो तो इट लगाते हैं, इट इज काउ। एक पक्षी हो उसके लिए इट लगाते हैं, इट इज पिकॉक। एक नवजात शिशु, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और आखिरी में 5वां, वृहन्नला या नपुंसक या छक्का जिसको कहते हैं, शिखंडी के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए भी इट का प्रयोग, उनके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक होना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं दे का हिंदी अर्थ वे है, और वे शब्द का प्रयोग हम हिंदी में किसी को सम्मान देने के लिए करते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप दे का प्रयोग एक से ज्यादा के लिए ही करिएगा हमेशा। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तो कैसे हास्य हो सकता है, इंसल्ट हो सकती है, देखिएगा। मान लीजिए आप स्कूल में पहुंचे या कॉलेज में पहुंचे और चपरासी से आपने पूछा, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? तो उसने बोला वे तो राउंड पे गए हुए हैं, या वे तो मीटिंग में हैं। सही हो गया। लेकिन बाय द वे आपने इंग्लिश में पूछ लिया, क्योंकि आप अपने शहर के अच्छे इंग्लिश स्कूल में हैं, तो आपने ये सोचा कि चपरासी भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता होगा, या मुंह से अचानक निकल गया वेयर इज द प्रिंसिपल, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द प्रिंसिपल। अब अगर चपरासी कम पढ़ा लिखा है लेकिन इंग्लिश बोलने का शौकीन है और उसने बोल दिया दे आर इन द मीटिंग या दे आर ऑन द राउंड, तो वाक्य गलत तो हो गया, लेकिन हर अर्थ का अनर्थ नहीं हुआ, याद रखिए। प्रिंसिपल तो एक ही होता है स्कूल का या कॉलेज का, तो दे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो वे लगाने के चक्कर में उसने दे लगा दिया। कोई बात नहीं, दूसरा उदाहरण देखिएगा कैसे हास्य हो सकता है और इंसल्ट हो सकती है। किसी बच्चे के घर में कोई अंकल आया, उन्होंने पूछा वेयर इज योर फादर? अब उसने गलती से बोल दिया दे आर इन द बेडरूम या दे आर इन द वॉशरूम, तो अर्थ का अनर्थ होगा। अब मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूं दोस्तों, वो काफी तल्ख उदाहरण है। तल्ख उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है तीखा, चुभेगा, खराब लगेगा। लेकिन ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपसे गलती से भी कभी गलती ना हो। ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, जैसे पिता के लिए दे शब्द का प्रयोग होता है, वो एक से ज्यादा हो गए, और हम सब जानते हैं खराब लगता है, गाली है, लेकिन ऐसा कहा जाता है हरामी। जिसके पिता एक से ज्यादा हो उसको हरामी कहा जाता है। अब ये बताना क्यों जरूरी था कि आप इतना सुनने के बाद, भले ही अभी थोड़ी देर के लिए खराब लगे, लेकिन आप हमेशा समझ के देकर प्रयोग करेंगे। और कभी कभी हमने स्टूडेंट्स को देखा है शुरुआत में वो पापा जी के लिए देकर प्रयोग कर देते, दादाजी के लिए कर देते हैं, मम्मी के लिए कर देते, क्योंकि वो सम्मान देते, हिंदी में वे बोलते हैं। तो ये उदाहरण देने के बाद आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, इसलिए इतना तीखा तल्ख उदाहरण देता हूं। तो दे का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए। एक छोटी सी बात और नोट कीजिए, दे का प्रयोग आप सब व्यक्ति के लिए बहुत समय से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग वस्तु के लिए भी आप कर सकते हैं, वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं टिल्ट कर रहा हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन
का कैमरा देखिएगा। दीज आर चेयर्स, दे आर प्लास्टिक मोल्डेड चेयर्स। ये कुर्सियां हैं, ये प्लास्टिक की ढाल के बनाई गई हुई कुर्सियां हैं। अब मैं दूसरा उदाहरण काल्पनिक दे रहा हूं। मान लीजिए सबसे पीछे कुछ लकड़ी की कुर्सियां रखी हुई हैं। Those are also chairs, but they are wooden chairs. इन दोनों का हिंदी बताइए कोई भी। सब वे भी चेयर्स हैं, पर वो लकड़ी की चेयर्स हैं। ये लकड़ी की कुर्सियां, करेक्ट। ये जो कुर्सियां हैं ये प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, और जो पीछे रखी दिख रही हैं वो लकड़ी की कुर्सियां हैं। तो दे का प्रयोग आप वस्तु के लिए भी कर सकते, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए। These are some posters. They are informative posters. ये कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये सूचना देने वाले पोस्टर्स हैं। तो दे का प्रयोग आप वस्तु के लिए करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, वो हम ऑलरेडी करते हैं और कर भी सकते हैं। एक उदाहरण और मैं देता हूं। आप तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं ऑफलाइन को ये उदाहरण देता हूं कि some bikes are parked outside. They are your bikes. इसका हिंदी जूही जी बताएं। कुछ बाइक्स पार्क की हुई हैं, वे वे आपकी हैं, तुम्हारी हैं। बिल्कुल, बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो आपकी गाड़ियां हैं। दे का प्रयोग वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। अब एक और मजेदार चीज देखिएगा, और जो कुछ मैं आज बता रहा हूं, बाद में कोई सवाल आए तो आप कल पूछ सकते हैं। थर्ड पर्सन में जितनी चीजें लिखी हुई हैं दोस्तों, ये सब थर्ड पर्सन होने के साथ साथ प्रोनाउन भी है। क्या है मान्या? सर ये सब प्रोनाउंस भी हैं। बताओ मान्या, प्रोनाउन किसे कहते हैं? सब प्रोनाउन किसी का सर्वनाम, किसी की नाम की जगह जिसे लिया जाता है, मतलब सर्वनाम, वो प्रोनाउन कहलाता है। सौम्या, तुम कैसे डिफाइन करोगी? हाउ विल यू डिफाइन प्रोनाउन? सर नाउन की जगह जो रखा जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जूही जी? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम। चलिए, के मुंह से और सुनते, नहीं तो व्यक्ति बोर होता रहता है। Sir, the word comes under the place of, sorry, instead of noun, that is pronoun. करेक्ट। सबसे बढ़िया हिंदी की परिभाषा जो जूही जी ने बताई, उसको भी ध्यान में रखें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और हमने हल्का हल्का सा प्रयोग, मान्य तुमने ध्यान दिया होगा, बोल बोल के शुरू करवाया अभी आंसर में। लेकिन आज के बाद आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्रोनाउन का प्रयोग करें। ठीक है, मैं बताता हूं उदाहरण, फिर आप भी एक एक उदाहरण दीजिएगा, नहीं तो आप बोर होते रहेंगे। सब काल्पनिक है। दिस इज माय ब्रदर। किसी पार्टी में मैं किसी को मिलवा रहा हूं, या ऐसा बोलता हूं, दिस इज राहुल, ही इज माय ब्रदर। ये राहुल है, ये मेरा भाई है। या दिस इज माय ब्रदर, ही इज राहुल। मैंने ही का प्रयोग दूसरे सेंटेंस में किया। ठीक है, अभी आपको पुरुषवाचक ही रखना है। सौम्या से शुरू करके 2 सेंटेंस। This is Jha sir. He is my teacher.
ये झा सर है और ये मेरे टीचर हैं। मान्या दीदी। This is Mr. Sharma. He is a doctor. Juidi. दिस इज राजा, ही इज माई ब्रदर। वह राजा है, वह मेरा भाई है। कृष्णा सर। यू आर म्यूट। विवेकानंद जी दिख तो रहे हैं लेकिन यू आर Okay, म्यूट। sir. Okay, sir. He was Swami Vivekanand and he was a saint. ये स्वामी विवेकानंद है और ये एक संत थे। तुमने दोनों जगह ही लगा दिया। ओके सर। ही इज स्वामी विवेकानंद। फिर ही लग गया सारी। सॉरी, जस्ट अ मिनट सर, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। दिस लगाओ, दिस या दैट। दिस इज स्वामी विवेकानंद एंड ही वाज अ सेंट। ये स्वामी विवेकानंद है और ये एक संत है। That is my sister. She is Reena. Yeah, that is Reena. She is my sister. पार्टी में मैं किसी को मिलवा रहा हूँ। सौम्या। That is Shreya and he's my friend. That is Shreya and she is my friend. वो श्रेया है और वो मेरी दोस्त है। मान्या दीदी। मान्या दीदी। सर दैट इज बॉक्सर एंड ही इज माय कजन। वो एक बॉक्सर है और वो मेरा भाई है। That is Mother Teresa and she is my idol person. Juidi. That is दिशा and she is my daughter. वह दिशा है और वह मेरी बेटी है। अब हम इट पर आते हैं दोस्तों। इट का प्रयोग प्रोनाउन के लिए मुझे कोई बहुत बड़ा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना तो याद है कि 6वीं क्लास से जब इंग्लिश शुरुआत हुई थी, हम लोग के समय में 6वीं से इंग्लिश की शुरुआत होती थी बेटा, तो हम लोग काऊ का निबंध खूब रटते थे। तो उसमें पहली लाइन तो होती थी, काऊ इज ए 4-footed एनिमल। काऊ इज ए 4-footed एनिमल। और उसके बाद की हर लाइन में इट हैज अ लॉन्ग टेल, इट हैज 4 legs, इट ईट्स ग्रास, इट गिव्स अस मिल्क, इट ये प्रोनाउन का प्रयोग आप अच्छे से आपको याद आ गया होगा। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक सेंटेंस अधूरा बोल के छोड़ते हैं, उसको कौन पूरा करेगा। उसके 2 सींग होते हैं, कौन बताएगा इसका इंग्लिश। Sir, can I? हाँ, It has 2 horns. spelling is on the screen. KK, mute yourself, please. Khatar patar noise is coming from your background. So, Juhi ji, are you surprised to listen this word? No, sir, I'm not surprised, but I forget. Actually, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। ये छोटे थे तब, अब तो बड़े हो गए। Soumya, have you heard this word, no? Yes sir, I have heard this word. हम बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। चलिए थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए, फिर यहाँ पे इसको
नहीं, चलो कहानी छोड़ देते हैं। हॉर्स मिसिंग, अभी समय अपने पास कम है। तो ही इज यूज फॉर सिंगुलर नंबर, एक पुरुष के लिए प्रयोग होता है। शी इज यूज फॉर सिंगुलर नंबर, एक स्त्री के लिए प्रयोग होता है। इट का प्रयोग अपन ने देखा एक जानवर के लिए, एक वस्तु के लिए, एक पक्षी के लिए, एक नवजात शिशु के लिए। नवजात शिशु के लिए हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं जैसे नर्स बच्चे को लेकर बाहर निकले और आपने जैसे ही चेहरा देखा, मुंह से अचानक निकला इट्स ब्यूटीफुल। फिर आपने नर्स से पूछा लड़का है कि लड़की? तो नर्स ने बताया लड़की। तो फिर आपने बोला शी इज ब्यूटीफुल। अक्सर 3 साल तक बच्चों के जब तक मुंडन नहीं होता है, बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, आंखों पे आते हैं तो मम्मा चोटी बांध देती है, 3 साल तक होता है। नानी ने पायल दे दी तो लड़का है लेकिन पहने रहता है। दादी ने बड़े प्यार से झबला बनाया था फ्रॉक जैसा, वो पहना दिया जाता है। तो कई बार समझ में नहीं आता ना लड़का है कि लड़की। तो ऐसी स्थिति में अपन बोल सकते हैं इट्स ब्यूटीफुल बॉय और गर्ल। फिर हम बाद में पूछते हैं तो सामने से जवाब आता है बॉय या गर्ल। तो इट का प्रयोग हम छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं। और छठे के लिए हमने एक आर्टिकल पढ़ा था इंग्लिश मैगजीन में, उसमें इट का प्रयोग उन्होंने किया था। दे का प्रयोग अपन ने बहुवचन के लिए देख लिया, ये सब प्रोनाउन भी होते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं ऊपर। जूही जी बताइए, यू एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन सर। ओके, सुम्या तुम बताओ। सर बहुवचन है। ओके, मान्या आर यू देयर? मान्या के बच्चे उससे आके कुछ कुछ बात कर रहे हैं, उसने खिड़की बंद कर ली। सॉरी सर, कम अगेन। कोई बात नहीं। अब हम के से नहीं पूछेंगे, के तुमसे पूछें क्या, तुम्हें पता है कि नहीं? सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू यू इज अ बोथ, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अच्छा, कैसा कैसे यूज। मान्य सवाल ये है कि बताओ यू एक वचन है कि बहुवचन? सर एक्चुअली के सर इज राइट, आई अग्री विथ हिम। कभी कभी हम बच्चों से पूछते हैं तुम कैसे कह सकते हो कि ये बहुवचन भी है और एक वचन भी है? तो बहुत कुछ बच्चे बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि सर आपने साफ साफ तो लिखा है तुम लोग, आप लोग। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, एक वचन भी होता है बहुवचन भी। अब थोड़ा सा यहाँ चलते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में यू केवल बहुवचन होता था और उसके साथ आर नाम की सहायक क्रिया का प्रयोग होता था या मुख्य क्रिया का। और एक वचन के लिए इस शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में मिलता है। इज इट विजिबल टू यू? हाँ, आप केवल इशारा करके बता दें तो पर्याप्त रहेगा। इट इज विजिबल टू जूही जी, सौम्या, मान्य, दाऊ। ये एक वचन के लिए प्रयोग होता था और इसके साथ जो सहायक क्रिया उस समय चलती थी जो कि लुप्त हो गई, वो भी सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसके साथ की सहायक क्रिया होती थी आर्ट। आर्ट वही आर्ट जो हम कला के रूप में जानते हैं, वो सहायक क्रिया होती थी। और ये वाला जो दाऊ है, ये तुम या तू तड़ाक की भाषा के लिए इसका प्रयोग होता था। उदाहरण के लिए थोड़ा सा काल्पनिकता भी ला रहे हैं। और यू सम्मान के लिए प्रयोग होता था आप, यू आर, ऐसा। तो हम एक काल्पनिक और फिल्मी सेंटेंस बना के बताते हैं, दाऊ आर्ट ए बैडमैन, तो बुरा आदमी है रे।
बताइए मैंने किसकी एक्टिंग की? 7.25 करोड़ मिलेंगे जो सही जवाब देगा। राजेश खन्ना। सही जवाब। दाऊ आर्ट ए बैड मैन, तू बुरा आदमी है रे। लेकिन ये लुप्त तो हो गया, इसके साथ की सहायक क्रिया भी लुप्त हो गई। किंतु अगर आप ये शब्द देखना चाहते हैं तो आपको शेक्सपियर की किसी भी बुक में आसानी से मिल जाएगा। आज भी शेक्सपियर की बुक आसानी से मिलेगी कि नहीं वो पता नहीं, और आपके बच्चों की किसी भी बुक में पोयम में ये जरूर मिल जाएगा, क्योंकि कुछ पोयम्स बहुत पुरानी लिखी हुई हैं, उनमें दाऊ का प्रयोग देखने को मिलता है। आप में से किसी ने इस शब्द का कहीं प्रयोग देखा है? नो सर। ओके। संयोग से मेरे पास एक रजिस्टर जिसमें मैंने अपने सेंटेंसेस लिखे हुए, मैं इसी में से देख देख के देता हूँ। मैं इस आपके टिल्ट कर रहा हूँ स्क्रीन को। ये येलो कलर से दिख रहा है आपको क्या लिखा है? हम पढ़ के सुना देते। ओ मैन, इन्फिनाइट इज दाई पावर। इन्फिनाइट इज दाई पावर। हे मानव, तुझ में कितना सामर्थ्य भरा है। ओ मैन, इन्फिनाइट इज दाई पावर। तो ये शब्द विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी पुरानी किताबों में और पोएम्स में पाए जाते हैं। बच्चों की बुक्स में आप ढूंढेंगे तो जरूर मिलेंगे। तो दाऊ लुप्त हो गया, उसके साथ आर्ट नाम की सहायक क्रिया लुप्त हो गई, और अब केवल यू का प्रयोग चलता है, हम सब जानते हैं। और यू एक वचन बहुवचन दोनों होने के बावजूद उसके साथ सहायक क्रिया हमेशा बहुवचन की लगती है, ये महत्वपूर्ण है। या मुख्य क्रिया हमेशा बहुवचन की लगती है। जैसे यू आर स्टूडेंट, ये मुख्य क्रिया है आर, बी चैप्टर है ना, इसमें आर मुख्य क्रिया होती है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ आर सहायक क्रिया है, लेकिन यू के साथ आर ही लगती है, इस नहीं लगती है। तो यू दोनों है इस तरह से। आगे हम और मजेदार चीजें देखेंगे, डोंट वरी। अब समय हो गया है, यहाँ पे आखिरी सवाल पूछ के हम विराम देते हैं। बताइए मान्या, जूही जी, आई एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन सर। एक वचन। अब मैं आपको जोर का झटका देने वाला हूँ, आपको कैसे लगेगा पता है? बताओ, धीरे से लगेगा कि जोर से? सर जोर से। जोर से ही लगेगा। आई भी दोनों होता है, एक वचन भी और बहुवचन भी। बोलो भारत माता की जय। लगा जोर का झटका? But how come I is plural and singular? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप आज रात भर तड़पिए और कल दिन भर 5 बजे आपको हम इसका विस्तृत उत्तर देंगे। अंग्रेजी लोग खूब परेशान हुए भाई, खूब तड़पे इसको लेकर, थोड़ा सा आप भी तड़पो। तो कल हम मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir.